شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سجاتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تکان کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر صرف اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تکان اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا روکھا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ حکیم اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا، دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی مگر اس کے لب پر کوئی سخت روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیات زیادہ اہم تھیں، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا، اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہ منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مجبور پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے تو ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاروق بھی ایک کم ظرف آدمی تھا، اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر اب تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، چاہے تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں اب سکون سے رہیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک مناسب حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہ گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخرکار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا،
आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल व दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत न की बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी मामलात में इतना मगन हो गया था कि इसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान ना दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा तुम यहां नहीं रह सकते, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हकीम ने दिल बर्दाश्त होकर आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहां जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाएं खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। इसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। इसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलाखिर बीमारी शुरू हो गई और वो शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। इसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में इसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बाइस बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं, अब के बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है, मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शको है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला से कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फलागिली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ, इसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने इसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, इसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। बिलाखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खला था। इसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि इसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा, ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी, मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है।
हालांकि बाबा ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी मां के थे, और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने अपनी दियानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया। एक बड़े भाई ने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों की वजह से वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था, इसे अपना घर भी बेचना पड़ा। एक दिन एक और भाई जो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, चोरी में मुलव्वस पाया गया और काजी ने इसे जेल भेज दिया। इसकी तमाम साख बर्बाद हो गई और मेरे बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाने से घबराने लगे। उन्हें लगा कि अगर मैंने इसे छुआ तो सब खाक हो जाएगा। ये सब बाप की बद्दुआ का नतीजा था। जबकि दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कपड़े का कारोबार शुरू किया। वो बगदाद के बाजार से उम्दा कपड़ा खरीद कर बेचता और वक्त के साथ बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता। ऐसा लगता था कि इसकी ईमानदारी, इसके वालिद की मेहरबानी और उनकी इस्तिकामत की बदौलत थी। अब्दुल्ला की मेहनत ने इसे कामयाबी के रास्ते पर डाल दिया। उसने अपने दूसरे भाइयों को भी कारोबार में शामिल किया, दुकानें खरीदना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता पूरी मार्केट का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को अमीर समझते थे, अब अब्दुल्ला के दरवाजे पर सवाल करने आ रहे थे। अब्दुल्ला जो एक रहमदिल और मुशफिक शख्स था, उनकी मदद करता रहा। उसका ये रवैया इसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। वो अपने वालिद की सिखाई हुई इखलाकी अक़दार पर अमल करता रहा। एक दिन अब्दुल्ला ने बगदाद के एक तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ी इमारत खरीदी और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। इस मोड़ पर भी वो अपने वालिद की दुआओं और तालीम की अहमियत को महसूस करता रहा। यही दुआएं और तरबियत इसे बगदाद का अमीर बनाने में मुआविन साबित हुई, लेकिन साथ ही वो अपने वालिद की अदम मौजूदगी को महसूस करके उदास भी हो जाता था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सादा कहानी पसंद आई और आप मजीद ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वाकये के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में लिखी, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।